अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने सब्जेक्ट सेट टोपोलॉजी 251 में लेक्चर नंबर 28 को स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लास्ट लेक्चर में कॉम्पैक्टनेस इन टोपोलॉजिकल स्पेसेस को स्टडी करते आ रहे हैं। आज हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, कुछ रिजल्ट्स को हम प्रूव करेंगे। Dear students, we will continue the study of compactness. Dear students, union of compact subsets को हम देखेंगे कि क्या वो compact होते हैं या नहीं। हम image of compact subsets की बात करेंगे, hereditary property को study करेंगे। Dear students, हमने last time ये देखा और डिस्कस किया that all finite spaces are compact and are called trivial compact spaces. Dear student, अगर हमारे पास ground set ही closed compact, dear students, अगर हमारे पास ground set ही finite set है, say x1, x2, x3 and x4 and so on, suppose consist करता है n elements per. Dear students, if this ground set is finite, if this is finite, dear students, then whatever topology we construct on this set, for any topology tau, this x together with this tau is a topological space. Dear students, because the set is finite, the possible subsets of finite, since x is finite, possible subsets of x are finite. Okay, the largest topology you remember is the discrete topology on any set x. So largest topology जो होगी वो भी हमारे पास finite number of elements पे consist करेगी। तो जब भी set finite होगा तो इसकी whatever कवरिंग हम लेंगे, इसकी जो भी कवरिंग हम लें, जी अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई, ओके, जो भी हम कवरिंग लें इसकी जी, जहाँ पर जी अल्फ़ा जो है वो नेचुरली टा को बिलोंग कर रहे हैं, चूँकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, डियर स्टूडेंट्स, क्यों फाइनाइट हैं? इसलिए कि ग्राउंड सेट के एलिमेंट्स ही फाइनाइट हैं, तो उस पर जितनी भी टोपोलॉजीज कंस्ट्रक्ट करेंगे उस टोपोलॉजी के मेंबर्स की तादाद भी फाइनाइट रहेगी। सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी हम इसकी ओपन कवरिंग लेंगे, एवरी ओपन कवरिंग चूँकि has a finite subcovering. Dear students, in fact every open covering is finite because elements of tau are finite, therefore every open covering is finite and hence subcovering also remains finite. So this implies if the ground set is finite, then such a topological space is a compact space. So dear students, remember, if the ground set is finite, all finite spaces stands for ground sets are finite, therefore members of topology are finite, are compact and are called trivial compact spaces. Trivial, no need to prove that they are compact because even their covering is finite and therefore finite subcovering always exists. Okay, so this is trivially compact space. Dear students, every cofinite space is compact. We need to verify it.
cofinite space. You remember a space is cofinite if the complement of open sets are finite, right dear students? X star is cofinite if, say, G alpha complement is finite for each G alpha belongs to tau. जो भी ओपन सेट लें अगर उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट सेट है, कॉम्प्लीमेंट सेट फाइनाइट है, तो देन सच ए टोपोलॉजी इज कॉल्ड कोफाइनाइट टोपोलॉजी. सो डियर स्टूडेंट्स, एवरी कोफाइनाइट स्पेस इज कॉम्पैक्ट. यहाँ पर हम इसको वेरीफाई करना चाहेंगे. हम ये देखना चाहेंगे कि क्या कोफाइनाइट स्पेस कॉम्पैक्ट होती है. ओके, इसके लिए मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट एक्स स्टार be a cofinite space. Right dear students, this is a cofinite space, right? It means कि इसके टा के जो मेंबर्स होंगे उनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट होंगे. ओके, मैं इसकी कोई ओपन कवरिंग लेता हूँ. लेट G alpha such that alpha belongs to indexing set I, the set of all integers, be a cover of X by open subsets of X, right? That is, cover of X means this X is equal to union of alpha belonging I G alpha, right dear students? Now G alpha are members of tau. What is tau? It is cofinite topology. So by the definition of the cofinite topology, G alpha complement, C represents the complement over here, right, is finite set for each alpha is equal to 1, 2 and so on, right? G1 is finite, G2 is finite, G3 is finite. Dear students, look, इन G alpha की यूनियन जो है वो इस X के बराबर है, ठीक है? सो इन सारे हम देखना चाहते हैं कि क्या इस ओपन कवरिंग की कोई फाइनाइट सब कवरिंग एग्जिस्ट करती है. जब कहते हैं सब कवरिंग तो इसका मतलब है उसकी यूनियन वापस X के इक्वल हो. अगर तो इस कवरिंग की फाइनाइट सब कवरिंग हम ढूंढ पाएं, इफ वी कैन फाइंड a finite sub collection of these G alpha so that their union covers X, तो फिर हमारी कंक्लूजन ये होगी कि ये X कॉम्पैक्ट है. ओके, सो मैं ये अस्यूम करता हूँ कि चूंकि इसमें से हर G alpha का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा, तो इन पर्टिकुलर एक मैं इसमें से G alpha में से कोई एक मैं G नॉट ले लेता हूँ. G नॉट, G0, दिस इज अमॉन्ग देम, कोई इसमें से एक है. ओके ओके ओके, चूंकि अल्फा को हम इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट कर देते हैं. फर्ज करता हूँ G नॉट मैंने इसमें से ले लिया, एक पर्टिकुलर सबसेट है, दिस इज ओपन, तो इसका कॉम्प्लीमेंट चूंकि फाइनाइट होना है तो इसके कोई एलिमेंट्स होंगे. अस्यूम कर लेता हूं कि वो एलिमेंट्स हैं A1, A2 एंड से AK, राइट? बिकॉज इट इज फाइनाइट, देयरफॉर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे. ओके, इन पर्टिकुलर दिस इज ए फाइनाइट सेट. डियर स्टूडेंट,
अब चूंकि हमारे पास जो स्पेस है ये A1 A2 A उसके मेंबर्स हैं, राइट। G नॉट इज एनी मेंबर ऑफ दिस G अल्फास। इन G अल्फा की यूनियन जो है वो स्पेस को कवर कर रही है। G नॉट का कॉम्प्लीमेंट बीइंग मेंबर ऑफ द कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज फाइनाइट। G naught is a member of the cofinite topology, therefore G naught complement is finite। assume कर लिया है कि इसके A1 A2 A के एलिमेंट हैं, ओके। अब चूंकि ये स्पेस के एलिमेंट्स हैं, ग्राउंड सेट X के एलिमेंट्स हैं G1 से Gk तक, लिहाजा ये इन G अल्फा में से किसी न किसी G अल्फा को बिलोंग करते होंगे। चूंकि उन सारों की यूनियन X के इक्वल है, लिहाजा X का जो भी एलिमेंट लेंगे वो किसी न किसी G अल्फा के अंदर मौजूद होगा। मैं अस्यूम कर लेता हूं कि ये वाला A1 जो है ये G1 अल्फा में है, ये A2 जो है ये G2 अल्फा में है, और ये AK जो है ये GK अल्फा में है। तो इसका मतलब ये होगा डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होगा कि ये जो AK हैं ये बिलोंग करते हैं GK अल्फा को फॉर ईच K इज इक्वल टू 1 2, इसको Gn कह लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो कॉल इट Gn। Gn बिलोंग्स टू Gn अल्फा फॉर ईच n equal to 1 2 and so on। it means A1 belongs to G1 alpha, A2 belongs to G2 alpha, and so on। AK belongs to, this is up to K, AK belongs to GK alpha, right dear students? Dear students, since G alpha belongs to I is cover of X, therefore each AN must belongs to some Gn alpha, right? Now this shows that this G0 complement is contained in, because A1 is contained in G1 alpha, A2 is contained in G2 alpha, union so on, union GK alpha, right? Because this set is contained in this. Now remember, okay dear students, now look dear students, it is very interesting that we have a space X which is covered by G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G and so on. These are the open coverings and their unions. Maybe infinite many, okay? डियर स्टूडेंट्स, सपोज करता हूँ कि ये मेरे पास इसमें से G0 था।
Now the complement of this G0 is dear student, as here it was G0, this was say G0, and the rest of the part is G0 complement, right? This whole thing is G0 complement, right? If this is G0, then the rest of the part is G0 complement, and we have shown इस जगह पर कि G0 का कॉम्प्लीमेंट जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स के अंदर कंटेन कर गया है, राइट डियर स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो इक्वल रह गया है इन सारे सेट्स के, यानी G0 के यूनियन किन का, बाकी जो हिस्सा है ये सारे का सारा रिमेनिंग पार्ट जो है दैट इज कंटेन्ड इन दिस। सो G1 अल्फा यूनियन G2 अल्फा यूनियन सो ऑन यूनियन JK अल्फा, और वी कैन राइट इट G0 यूनियन ऑफ n is equal to say 1 to k GNK. Okay, so these are actually k plus 1 number of open sets which are covering this set X. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि ओरिजिनली हमने कवरिंग अस्यूम की इस सेट X की ओपन कवरिंग, और अल्टीमेटली हमने k+1 नंबर ऑफ ओपन सेट्स ढूंढ लिए जिनकी यूनियन वापस इस x को कवर करती है। तो दिस इंप्लाइज दैट x टुगेदर विद दिस स्टार इज ए कॉम्पैक्ट स्पेस। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि अगर हमारे पास जो स्पेस है वो कोफाइनाइट स्पेस है, गोया कि जो उस स्पेस पे टोपोलॉजी डिफाइन की गई है वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। जब कोफाइनाइट टोपोलॉजी है तो फिर हर ओपन सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो फाइनाइट होगा। हमने इसकी कवरिंग में से कोई एक ओपन सेट अस्यूम किया जिसको हमने G0 का नाम दिया, G0 का नाम दिया, और चूंकि वो G0 टोपोलॉजी का मेंबर है, टोपोलॉजी कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो फाइनाइट सेट होगा। अगर वो फाइनाइट है तो उसके अंदर हमने अज्यूम कर लिया है कि k नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब चूंकि हमारे पास G अल्फा बिलोंग्स टू I कवरिंग है तो फिर इस स्पेस का हर एलिमेंट यानी A1 A2 A3 AK हर एलिमेंट जो है वो किसी न किसी ओपन सेट में मौजूद होगा उस कवरिंग के। लिहाजा फ़र्ज़ कर लिया है कि वो A1 जो है वो G1 अल्फा में उनकी हमने री नंबरिंग कर ली है। जो हमारे पास ओपन कवरिंग के मेंबर्स हैं उनकी हमने री इंडेक्सिंग कर ली है, री नंबरिंग कर ली है। तो हमने फ़र्ज़ किया है कि A1 जो है वो जिसमें कंटेन करता है, बिलफर्ज वो A1 जो है वो इसमें कंटेन करता है, A2 जो है वो इसमें कंटेन करता है, A3 जो है वो इसमें कंटेन करता है। तो हमने इसकी री नंबरिंग कर ली है और इसको कहा है कि A1 बिलोंग्स टू G1 अल्फा, A2 बिलोंग्स टू G2 अल्फा एंड AK बिलोंग्स टू JK अल्फा। ओके, इसका मतलब k नंबर ऑफ ओपन सेट्स हैं जो कि उन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन कर रहे हैं, और चूंकि G0 का कॉम्प्लीमेंट इन सारों में कंटेन हो रहा है तो G0 का कॉम्प्लीमेंट इसमें चला गया है और G0 खुद अपने में चला गया है। तो इस सारी कलेक्शन की यूनियन जो है दैट इज अगेन इक्वल टू x। इट मीन्स कि एवरी कवरिंग हैज़ ए फाइनाइट सब कवरिंग, देयरफॉर जो को फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस होती है वो ऑलवेज कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस होती है। So this is what dear students you have to remember कि हमेशा को-फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, go to example number 3 and 4. So example 3 is R with the usual topology is not compact. This is what you have to remember कि R जो है जब भी हम R को यूजुअल टोपोलॉजी के साथ लेंगे, दिस इज R विद द यूजुअल टोपोलॉजी
Okay, it means union of open disks, and here open disks are open intervals. Okay, R2 में open spheres are open disks, R1 में open spheres are open intervals, R3 में open spheres are open spheres actually, and so on. Dear students, R with the usual topology union of open intervals, this is not a compact space. चूँकि हम open covering की finite सब covering नहीं ढूंढ सकते. For example, अगर मैं इसकी open covering जो है उसको मैं G का नाम दूं और वो open covering जो है वो -n and n अगर मैं ले लेता हूँ and n belongs to the set of natural numbers, so indexing set, तो आपको मालूम है कि मेरे पास जो open इंटरवल्स आएंगे वो -1 1 -2 2 एंड ओके, कौन से आएंगे ओपन इंटरवल्स? -1 and 1, फिर -2 and 2 एंड देन -3 and 3 एंड सो ऑन. सो हम फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन इंटरवल्स नहीं ढूंढ सकते जिनकी यूनियन जो है वो वापस इसको कवर करती हो. ओके, सो दिस इज नॉट कॉम्पैक्ट. The fourth example is, dear students, that no infinite discrete space is compact. जब मेरे पास set X जो है ये infinite होगा, if this is infinite set, तो discrete space के लिए for each x belonging x जो सिंगलटन है वो उसका मेंबर होगा. ओके, तो हमारे पास सिंगलटन सेट्स की तादाद जो होगी, बिकॉज x इज इनफाइनाइट, हमारे पास ये इनफाइनाइट मैनी वी हैव सिंगलटन्स इनफाइनाइट मैनी singletons in Ta, infinite many singletons. We cannot find a finite collection which cover X. ठीक है, this implies X is not compact. Dear students, कम से कम ये एक ऐसी ओपन कवरिंग है जो सिंगलटन पे कंसिस्ट करती है डिस्क्रीट स्पेस के लिए. ये ऐसी ओपन कवरिंग है जो सिंगलटन पे कंसिस्ट करती है, और अगर हम इसकी फाइनाइट सब कलेक्शन लेते हैं तो रिमेनिंग पॉइंट्स जो है वो अनकवर्ड रह जाते हैं. सो corresponding to this covering we cannot find a finite sub covering. तो स्पेस कब कॉम्पैक्ट बनती है? जब उसकी एवरी कवरिंग हैज़ ए फाइनाइट सब कवरिंग. लिहाजा इस स्पेस में कम से कम एक कवरिंग ऐसी है जो सिंगलटन सेट पे कंसिस्ट करती है और उसकी हम फाइनाइट सब कवरिंग नहीं ढूंढ सकते. देयरफॉर इनफाइनाइट डिस्क्रीट स्पेस इज नॉट कॉम्पैक्ट. ओके, नो इनफाइनाइट डिस्क्रीट स्पेस इज कॉम्पैक्ट. इट मीन जो भी इनफाइनाइट सेट पे कंसिस्ट करती होगी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी, वो कॉम्पैक्ट नहीं होगी. ओके डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ए थ्योरम. एनी फाइनाइट यूनियन ऑफ कॉम्पैक्ट सबसेट्स ऑफ ए स्पेस एक्स इज कॉम्पैक्ट. ओके, एनी फाइनाइट यूनियन ऑफ कॉम्पैक्ट सबसेट्स, जो सबसेट्स हैं वो कॉम्पैक्ट हैं, उनकी फाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट सबसेट्स की जो यूनियन है वो हम प्रूव करना चाहते हैं कि दैट इज अगेन कॉम्पैक्ट. राइट, सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई दो सेट्स हैं A1 एंड A2, वो कॉम्पैक्ट हैं. स्पेस कॉम्पैक्ट है नहीं है, नोबडी नोज. उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि स्पेस क्या है. दिस इज एन ऑर्डिनरी स्पेस. तो एनी फाइनाइट यूनियन ऑफ कॉम्पैक्ट सबसेट्स, जो सबसेट्स हैं वो कॉम्पैक्ट हैं.
सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस पे गौर करें तो इसमें गिवन क्या है? गिवन इस स्टेटमेंट में ये है कि हमारे पास एक्स स्टार इज एनी टोपोलॉजिकल स्पेस। ये कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, राइट डियर स्टूडेंट, दिस इज एनी टोपोलॉजिकल स्पेस। और इसमें बिलफर्ज A1, A2, A3, AN finite number of are compact subsets of X। तो प्रूव करना है कि इनकी यूनियन जो है, यूनियन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to N AI इज कॉम्पैक्ट, ये प्रूव करना चाहते हैं। Okay, so already it is given that this is already it is given कि स्पेस हमारे पास कोई है, that is X star is any topological space। A1, A2, AN are compact subsets of X। हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि इनकी यूनियन जो है ना वो कॉम्पैक्ट है। So dear students, लेट्स प्रूव दिस थ्योरम ओनली फॉर 2, और फिर वो फाइनाइट के ऊपर हमारे पास ट्रूथ को प्रिवेल करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसके प्रूफ में लेट कर लेता हूं कि लेट एक्स स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस let A1 and A2 be compact subsets of X। इसका मतलब ये होगा, और हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि we will prove that A1 union A2 is compact, right dear students? Dear students, चूंकि हम इसे कॉम्पैक्ट प्रूव करना चाहते हैं तो इसकी वर्किंग मेथडोलॉजी ये होती है कि जिस सेट को भी कॉम्पैक्ट शो करना हो उसकी ओपन कवरिंग, आर्बिट्रारी ओपन कवरिंग कंसीडर कर लेते हैं और फिर फाइंड आउट करते हैं कि क्या उसकी फाइनाइट सब कवरिंग एग्जिस्ट करती है। अगर रिजल्टेंटली फाइनाइट सब कवरिंग एग्जिस्ट करती हो तो कॉन्सिक्वेंटली वो सेट कॉम्पैक्ट हो जाता है, राइट डियर स्टूडेंट? सो एज ए फर्स्ट स्टेप लेट U alpha such that alpha belongs to I be an open covering of A1 union A2 by sets open in X, right? मैंने ये ओपन कवरिंग ले ली है A1 यूनियन A2 की, और जो U अल्फा है दे आर ओपन इन X। इसका मतलब ये हुआ कि दिस A1 यूनियन A2 is contained in union of alpha belongs to I U alpha, ओके? तो इनका यूनियन जब इस में कंटेन करता है तो इसमें से हर इंडिविजुअल सेट जो होगा, दिस इंप्लाइज A1 is contained in union of alpha belongs to I U alpha and A2 is contained in union of alpha belongs to I U alpha,
right? Remember, U alpha belongs to tau, right? This actually indicates that U alpha such that alpha belongs to I is an open covering of A1 as well as A2, right, dear students? Because A1 and A2 are compact subsets of X. So it is given in the statement कि A1 and A2 are compact, हमने ये assume किया हुआ है. अब चूंकि compact हैं तो लिहाजा जो भी open covering लेंगे उसकी finite sub covering exist करेगी, right? Because A1 is compact, लिहाजा इसकी जो भी open covering लेंगे by sets open in X, इसकी finite sub covering exist करेगी. Because A1 and A2 are compact subsets of X, therefore there exists finite subsets. इनको मैं I1 and I2 किसके finite subsets हैं? Of I, okay, such that ये ऐसे finite subsets हैं I के, such that क्या होता है कि A1 is contained in union of I belonging I1 UI and A2 is contained in union of J, for example, belonging I2 UJ, right? क्यों डियर स्टूडेंट्स ऐसा हुआ है? चूंकि A1 कॉम्पैक्ट है, लिहाजा जो ओपन कवरिंग ली हुई है उसकी फाइनाइट सब कवरिंग एग्जिस्ट करनी चाहिए. लिहाजा हमने फ़र्ज़ कर लिया है कि I1 एक फाइनाइट सबसेट है I का, कि जब भी इस I1 में से ये हम इंडेक्सेस लेते हैं तो इन UI की यूनियन जो है ये A1 के बराबर है, और यहाँ पर J की वेरिएशन हमने दे दी है UJ. जब भी हम इस I2 में से इंडेक्स लेते हैं तो ये UJ की यूनियन जो है ये A2 के बराबर है. सिंस I1 इज फाइनाइट, I1 and I2 are finite subsets, ऑफ I, चूंकि ये I के फाइनाइट सबसेट्स हैं, देयरफॉर डियर स्टूडेंट्स इनका सम भी, इनकी यूनियन भी वो फाइनाइट रहेगी. I1 यूनियन I2, जिसको मैं I0 का नाम दे देता हूँ, इज अगेन फाइनाइट, राइट डियर स्टूडेंट्स? बिकॉज I1 is finite, I2 is finite, therefore their union must be finite, is finite. Hence, it means that A1, which is contained in union of, now instead of I1, I can say union of I belonging I naught UI, and A2 is again contained in union of I belonging I naught UI. Okay, so this implies that A1 union A2 is contained in union of I belonging I naught A. So this implies A1 union A2 is contained in union of I belonging I naught UI.
Okay, so ultimately we are able to find a finite subcollection ui I belonging I naught, जहाँ पे I naught is a finite subset of I, कि इनकी यूनियन के अंदर ये कंटेन कर गए हैं. इनिशियली हमने ui एक कवरिंग ली थी और उसकी फाइनाइट सब कवरिंग ढूंढ ली है. सो दिस इम्प्लाइज दैट A1 यूनियन A2 is a compact subset of X. So dear students, we can extend this result to any finite number of sets. Union of finite number of compact sets is compact. So this completes the proof actually. Dear students, here we have a continuous image of a compact space is compact. Okay, continuous image of a compact space is compact. Dear students, what we have here, we have a compact space X together with topology zeta X, and we have another space Y together with topology zeta Y. Right, dear students, we have a function from X to F, and this function is continuous. Okay, dear students, we are given that the space X star X is compact. Okay, dear students, हमें जो चीज़ें गिवन हैं डियर स्टूडेंट्स, उसमें नंबर 1 हमें x टा x कॉम्पैक्ट दी हुई है. डियर स्टूडेंट्स, हमें फंक्शन f कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है. डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम प्रूव करना चाहते हैं. क्या प्रूव करना चाहते हैं कि f of x which is continuous image of a compact space, f of x is compact. ये हम प्रूव करना चाहते हैं. राइट डियर स्टूडेंट, जहां पर ये x कॉम्पैक्ट है गिवन, ये कॉन्टिन्यूस है गिवन. प्रूव ये करना है कि f of x जो है वो कॉम्पैक्ट है. डियर स्टूडेंट, रिमेंबर, अगर ये फंक्शन हमें ऑन टू दिया हुआ होता तो फिर f of x जो है वो y के इक्वल हो जाता, और गोया कि हमें कोडोमेन यानी y को कॉम्पैक्ट शो करना होता. अभी डियर स्टूडेंट्स, ये हमें फंक्शन सिर्फ कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं दिया हुआ. इसका मतलब है कि हमें f of x को कॉम्पैक्ट शो करना है. चूंकि फंक्शन ऑन टू नहीं है तो f of x जो है वो y का सबसेट होगा जनरली. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो कि इस जगह पर हमारे पास f of x जो है ये जनरली दिस इज ए सबसेट ऑफ y. सो दिस इज f of x. ओके, इस केस में f of x जो है दैट इज ए सबसेट ऑफ y. राइट डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज द सिचुएशन. ओके डियर स्टूडेंट्स, हियर वी नीड टू प्रूव okay dear students, let's go for the proof. Let x star x be a compact topological space. Let y टा y be a
topological space. Let f from x ta x to y ta y be a continuous function. Dear students, we will prove that f of x in generally which is subset of y is compact. Right, dear students? ओके, अब वो स्ट्रेटजी रिकॉल कीजिए जो मैंने आपको बताई है कि हम प्रूव करना चाहते हैं कि f ऑफ x इज कॉम्पैक्ट. ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने जिस सेट को कॉम्पैक्ट प्रूव करना हो हम उसकी ओपन कवरिंग लेते हैं और ढूंढते हैं कि क्या हम उसकी फाइनाइट सब कवरिंग फाइंड कर सकते हैं. अगर हम फाइनाइट सब कवरिंग फाइंड कर सकें तो रिजल्टेंटली स्पेस कॉम्पैक्ट होगी, और अगर हम फाइनाइट सब कवरिंग ना फाइंड कर सकें तो स्पेस जो है वो नॉट कॉम्पैक्ट होगी. सो डियर स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंगली चूंकि f ऑफ x को कॉम्पैक्ट शो करना चाहते हैं, मैं इस f ऑफ x की कोई ओपन कवरिंग कंसीडर करता हूं. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट u alpha such that alpha belongs to I is an indexing set, be an open covering of, किसे कंपैक्ट शो करना है, f of x को, f of x by sets open in the relative topology ta f of x. Right, dear students? चूंकि f ऑफ x जब भी हमारे पास सबसेट कॉम्पैक्ट होता है तो एज ए सब स्पेस कॉम्पैक्ट होता है, लिहाजा चूंकि इसे मैं कॉम्पैक्ट शो करना चाहता हूं तो इसकी ओपन कवरिंग लूंगा. ओपन कवरिंग जब भी लेंगे तो उसके ओपन सेट्स के रिस्पेक्ट से लेनी पड़ेगी. चूंकि f ऑफ x को कॉम्पैक्ट शो करना चाहते हैं एज ए सब स्पेस, तो एज ए सब स्पेस इसके जो ओपन सेट्स होंगे उनकी कलेक्शन की कवरिंग कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी. लिहाजा u अल्फा बी एन ओपन कवरिंग ऑफ f ऑफ x, चूंकि f ऑफ x को कॉम्पैक्ट शो करना है इसकी कवरिंग लेनी है, और वो ओपन सेट्स भी कहां पर होने चाहिए, बाय द रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन f ऑफ x. इसका मतलब है कि u अल्फा आर ओपन इन f ऑफ x. जब u अल्फा f ऑफ x में सब स्पेस में ओपन होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि दिस इंप्लाइज कि फॉर ईच u alpha there exist, क्या होगा, ओके, there exists कोई v alpha open in the space such that, क्या होना चाहिए कि ये जो u alpha है डियर स्टूडेंट, जब भी y का इंटरसेक्शन v अल्फा के साथ लेंगे, राइट डियर स्टूडेंट, तो रिजल्टेंटली हमारे पास u अल्फा बन रहा होगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, रिजल्टेंटली हमारे पास u अल्फा बन रहा होगा. ओके, जहां पे अब याद रहे कि v अल्फा आर ओपन इन y टा y. ओके डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर ये हमारे पास v अल्फा
की जो कलेक्शन होगी उनकी यूनियन भी इस एफ ऑफ एक्स को कवर करती होगी, चूंकि यू अल्फा कवर कर रहे हैं और वी अल्फा यू अल्फा से बिगर सेट्स हैं, चूंकि जब उनका इंटरसेक्शन वाई के साथ लेते हैं तो फिर वो यू अल्फा बनता है, अदरवाइज यू अल्फा इज ए सबसेट ऑफ वी अल्फा। लिहाजा वी अल्फा की यूनियन जो होगी वो भी डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स को कवर करेगी, बट जो वी अल्फा होंगे दे विल बी ओपन इन वाई। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऐसा हमें क्यों करना पड़ा? डियर स्टूडेंट्स, एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस है, वो x से y पर, राइट। लिहाजा ये y के ओपन सेट्स को के इनवर्स इमेजेस x में ओपन देता है। और अब मैंने y के ओपन सेट्स v अल्फा फाइंड कर लिए हैं, तो चूंकि f कॉन्टिन्यूस है लिहाजा v अल्फा की इनवर्स इमेजेस जो हैं वो हमारे पास x में ओपन होंगे। हमने डियर स्टूडेंट्स अपनी अजम्पशन में ये लिया हुआ है कि लेट f फ्रॉम x टा x टू y टा y बी कॉन्टिन्यूस। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम नेक्स्ट जाते हैं। सो हियर वी हैव, सो दिस इम्प्लाइज, ये जो हमारे पास f इनवर्स v अल्फा आएंगे सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू I, ओके, फॉर्म द कवरिंग ऑफ x by open subsets of x। डियर स्टूडेंट, ऐसा क्यों हुआ है? इट इज सिंपल डियर स्टूडेंट, रिमेंबर यहां पर हमारे पास y टा y है, ओके, हमने इसका सबसेट f ऑफ x लिया हुआ है, ओके। u अल्फा हमारे पास इस जगह पर है, दिस इज u अल्फा, फॉर एग्जाम्पल 1 u अल्फा, और ये हमें मिला है जिस वक्त हमने एक v अल्फा हमने v अल्फा का जब इंटरसेक्शन f ऑफ x से लिया है तो फिर हमें ये u अल्फा मिला है। अब वो v अल्फा जो है दैट इज बिगर देन u अल्फा, रिमेंबर, ओके, मैंने डॉटेड लाइन से v अल्फा की एक्सटेंशन शो की है। अब वो v अल्फाज जो है एक्चुअली ये जो f ऑफ x है डियर स्टूडेंट्स, ये कवर हो रहा है यूनियन ऑफ v अल्फा के अंदर भी, ओके, क्योंकि f ऑफ x जो है वो इक्वल टू है यूनियन ऑफ u अल्फा, और u अल्फा जो है वो कंटेन्ड है v अल्फा में, लिहाजा f ऑफ x जो है दैट इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ v अल्फा। तो इनके इनवर्स इमेजेस जो होंगे वो x को कवर कर रहे होंगे, x विल बी कंटेन्ड इन f इनवर्स यूनियन ऑफ v अल्फा, राइट डियर स्टूडेंट्स, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो f इनवर्स v अल्फा, f inverse v alpha, so f inverse v alpha form the covering of x by open subsets of x। क्यों open subsets of x? इसलिए डियर स्टूडेंट कि f is continuous। जब ये continuous है तो जब भी मैं y में ओपन सेट लूंगा उसका इनवर्स इमेज x में ओपन आएगा। अब डियर स्टूडेंट, सिंस x is compact, ठीक है, चूंकि x हमारे पास कॉम्पैक्ट है, देयरफॉर डेफिनेशन हमें बताती है कि एवरी ओपन कवरिंग ऑफ x हैज ए फाइनाइट सब कवरिंग। अब चूंकि दिस इज ओपन कवरिंग देयरफॉर इसकी भी फाइनाइट सब कवरिंग होगी। सो लेट
F inverse V1, F inverse V2, F inverse Vn be the finite subcovering of X, that is X is equal to union of I is equal to 1 to n F inverse Vi. Right, dear students? Dear students, this implies f of x is equal to f of union of I is equal to 1 to n F inverse Vi. Dear students, this is equal to F inverse union of I is equal to 1 to n Vi, and this is contained in, dear students, union of I is equal to 1 to n Vi, right? F inverse of B is contained in, remember, dear students, F inverse of B is a subset of B, okay, for every subset B. So here, dear students, we have F in, this is contained in this. Now this implies, dear students, Fx intersection Fx, I'm taking the intersection of Fx on the both sides, is equal to f of x. लेकिन on the other hand, f of x intersection union of I is equal to 1 to n Vi. Right, dear students? This is this thing on the right hand side, और मैं इसको दोबारा लिखता हूँ कि f of x is equal to, चूँकि इसका f x से intersection ले लिया, is equal to union of I equal to 1 to n, okay, fx intersection Vi by De Morgan law. जो यूनियन है वो बाहर आ जाएगा और इंटरसेक्शन अंदर चला जाएगा by De Morgan law. एंड fx intersection Vi, dear students, आपको पता है कि that is actually union of I is equal to 1 to n Ui. डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि जिस वक्त हमने Vi का इंटरसेक्शन Fx से लिया तो हमें Ui मिला. सो दिस इम्प्लाइज, माय डियर स्टूडेंट्स, f of x is equal to union of I equal to 1 to n Ui, where Ui open in f of x. ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने f of x के ओपन सेट्स की एक कवरिंग कंसीडर की और एक फाइनाइट सब कवरिंग अल्टीमेटली फाइंड कर ली. तो दिस इम्प्लाइज, डियर स्टूडेंट, f of x is compact. So this completes the proof. डियर स्टूडेंट, इस प्रूफ में हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करना है. इसकी स्टेटमेंट में बेसिकली टू इंफॉर्मेशंस दी हुई थी. एक इंफॉर्मेशन ये थी कि f के स्पेस x टाइक्स कॉम्पैक्ट है. दूसरी इंफॉर्मेशन ये थी कि फंक्शन जो है x टाइक्स से y टा y पे वो कॉन्टिन्यूअस है. So these two informations were given in the statement. Dear student, आप ऑब्जर्व करें कि इन इंफॉर्मेशंस को, दोनों इंफॉर्मेशन को इस प्रूफ के अंदर हमने यूज़ किया है. जब हमें f कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है
तो हमने उसकी कंटिन्यूटी को यूज करते हुए y में ओपन सेट्स के इनवर्स इमेजेस जो थे f इनवर्स v1 f इनवर्स v2 वो x में ओपन बनाए हैं। अगर फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूस ना दिया हुआ होता तो फिर f इनवर्स v अल्फा हमारे पास ओपन ना होते। f इनवर्स v अल्फा तभी ओपन बने हैं कि v अल्फा y में ओपन है और f कॉन्टिन्यूस है, लिहाजा f इनवर्स v अल्फा x में ओपन है। लिहाजा पहली इंफॉर्मेशन जो f की कॉन्टिन्यूटी की है वो हमने इस जगह पर यूज़ की है। फिर हमने चूंकि f इनवर्स v अल्फा x को कवर कर रहे हैं और ओपन सेट्स हैं और x अब हमें चूंकि कॉम्पैक्ट दिया हुआ है तो दूसरी इंफॉर्मेशन x की कॉम्पैक्ट यूज़ करते हुए हमने फाइनाइट कलेक्शन को फाइंड किया है। फाइनाइट कलेक्शन कौन सी ली है? f इनवर्स v1, f इनवर्स v2, f इनवर्स vn। ये फाइनाइट कलेक्शन हम ना ले सकते अगर x कॉम्पैक्ट ना दिया हुआ होता, लिहाजा x की कॉम्पैक्टनेस को हमने इस जगह पर यूज़ किया है, कॉन्टिन्यूटी को यूज़ किया है, कॉम्पैक्टनेस को यूज़ किया है और जो ओरिजिनल ओपन कवरिंग f ऑफ x की ली थी उसी में ही फाइनाइट सब कवरिंग ढूंढ के बता दी है कि जो कि f ऑफ x को कवर करती है एंड कंक्लूड ये किया है कि देन f ऑफ x इज कॉम्पैक्ट। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को और प्रूफ को अंडरस्टैंड कर सके होंगे। डियर स्टूडेंट, वी हैव एन अदर थ्योरम which is called closed hereditary property. Dear student, a closed subspace of a compact space is compact. Dear student, ये हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट है। डियर स्टूडेंट, आप रिकॉल कीजिए, हमने सेपरेशन एक्सियम में T0, T1 और T2 स्पेसिस को ये प्रूव किया कि एवरी सबस्पेस ऑफ ए T0 स्पेस, T1 स्पेस, T2 स्पेस is again a T0, T1, T2 स्पेस रिस्पेक्टिवली। सो वो हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज हैं। हमने रेगुलर स्पेस में भी ये प्रूव किया कि एवरी सब स्पेस ऑफ ए रेगुलर स्पेस इज ए रेगुलर स्पेस। गोया कि हमने प्रूव किया कि हेरिडिटरी प्रॉपर्टी होल्ड करती है रेगुलर स्पेसेस में भी। डियर स्टूडेंट, फिर हमने नॉर्मल स्पेसेस की बात की और हमने ये देखा कि नॉर्मल स्पेस में हर सब स्पेस वापस नॉर्मल नहीं होती, बल्कि जो क्लोज सब स्पेसेस हैं नॉर्मल की वो वापस नॉर्मल होती हैं। और वहाँ पे भी गोया कि हमने ये प्रूव किया कि क्लोज्ड हेरिडिटरी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ओके डियर स्टूडेंट, हमें ये बताया गया है कि कॉम्पैक्ट स्पेसेस में भी क्लोज्ड हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है। गोया कि हर सब स्पेस ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस कॉम्पैक्ट नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट्स, कौन सी सब स्पेसिस ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेसेस कॉम्पैक्ट होती हैं? द आंसर इज only closed subspace of a compact space is compact, right? Dear student, हम इस proof के theorem पर जाते हैं। We are given that we have a space X ta, this is a compact space डियर स्टूडेंट, हम इसकी एक क्लोज्ड सबस्पेस लेते हैं। दिस इज से वाई सबस्पेस है तो रिलेटिव टोपोलॉजी है टा वाई। ओके एंड दिस वाई इज दिस इज सबस्पेस। ओके अगर ये सबस्पेस है तो डेफिनेटली टा वाई जो होगा दैट विल बी इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन यू such that u belongs to ta. Okay, and subspace है। First information it is compact, second information ये subspace है and y is a subset of x where y is closed in x. तो इन दो
इंफॉर्मेशन की बेसिस पर हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि ये जो सबस्पेस है इज कॉम्पैक्ट। ओके, और कंक्लूजन ये होगा कि क्लोज सबस्पेस ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। ओके, क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट, ये हमारा कंक्लूजन होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो हम इस प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। सो प्रूफ let x tau be a compact space। जब इसको हमने कॉम्पैक्ट बोल दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्पेस के अंदर जो भी every open covering has a finite subcovering, every open covering has a finite subcovering। Let y contained in X be a closed subset of X। अगर ये क्लोज्ड है तो इसका मतलब है कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन है और वो टा का मेंबर है, subset of X। We prove that this Y together with this relative topology is compact। Okay, dear student, चूंकि हम इस सब स्पेस को कॉम्पैक्ट प्रूव करना चाहते हैं, तो जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जिस स्पेस को कॉम्पैक्ट प्रूव करना होता है हमें उसकी एक आर्बिट्ररी ओपन कवरिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स टोपोलॉजी लेनी होती है, और ये फाइंड करना होता है कि क्या फाइनाइट सब कलेक्शन भी उस स्पेस को कवर करती है। एंड अगर हमें आंसर यस मिल जाता है तो फिर हम कंक्लूड करते हैं कि वो स्पेस कॉम्पैक्ट है। लिहाजा चूंकि हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये कॉम्पैक्ट है तो इनिशियली हम लेट कर लेते हैं इसकी कोई ओपन कवरिंग। लेट u alpha such that alpha belongs to the indexing set I be an open covering of y। फिर फर्दर बता देते हैं कि by sets u alpha belongs to I, open of course in subspace topology y tau I। That is, this y is equal to union of alpha belongs to I u alpha, और u alpha क्या है, बिलोंग कर रहे हैं सबस्पेस टाउ आई को। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि यू अल्फा टाउ आई में ओपन है तो इसका मतलब ये होगा कि दिस इंप्लाइज कि फॉर ईच अल्फा बिलोंग्स टू आई देयर एग्जिस्ट वी अल्फा बिलोंगिंग टा सच दैट ये जो u अल्फा है ये इक्वल टू होगा y इंटरसेक्शन v अल्फा के। राइट डियर स्टूडेंट्स, नाउ v अल्फाज आर ओपन इन टा, रिमेंबर v अल्फाज आर ओपन इन टा, करेक्ट। तो इधर से हमें ये भी पता चलता है कि फिर ये जो y है इट विल बी कंटेन इन यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू i v अल्फा। ओके, नाउ इट इज कंटेन्ड, इधर ये बराबर था u अल्फा के। ओके, अब चूंकि v अल्फा एक्चुअली u अल्फा से बिगर सेट्स हैं, लिहाजा इन v अल्फा की यूनियन में ये y कंटेन करता है। और ये याद रहे कि जो v अल्फा हैं
ये ओपन किस में है, ये टा में ओपन है। ओके, अब y वाज क्लोज्ड, इसका मतलब है कि लुक एट द फिगर कि ये जो y है, ये वाला पोर्शन इस ग्राउंड स्पेस x का कौन सा पोर्शन, y वाला। मैं इधर रीफिगर करता हूं इसको। दिस इज x टुगेदर विद दिस टा। हमने यहां पर एक सेट y लिया है, याद रहे कि ये क्लोज्ड है। ये क्या है, क्लोज्ड है। किस में क्लोज्ड है, x में है। अगर ये क्लोज्ड है तो इसका मतलब है कि ये वाला जो हिस्सा होगा ये x माइनस वाई होगा, और ये क्या होगा, x माइनस वाई, दिस होल पार्ट, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ y, दिस होल पार्ट is x minus y, and what is this, x minus y, this is open. Why it is open? Because y is closed. चूंकि ये closed है लिहाजा ये open होगा। अब जो y है वो कवर हो रहा है v अल्फाज में। हमारे पास जो this is से v अल्फा, this is से v अल्फा, this is से v अल्फा, 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 okay, this y is being covered by v alpha, okay, and x minus y is open. अब देखिए कि ये v अल्फा y को कवर कर रहे हैं, और अगर इन v अल्फाज में, यानी ये यूनियन ऑफ, दिस इंप्लाइज, अगर मैं ये यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू i v अल्फा ले लूँ, और इसमें फर्दर मैं यूनियन ले लूँ अगर y माइनस एक्स का, तो डियर स्टूडेंट अब सारे का सारा x जो है वो कवर हो जाएगा। ओके, चूँकि y जो है वो ऑलरेडी कवर हो रहा था v अल्फा से, और रिमेनिंग ओपन सेट जो है x माइनस वाई, उसको भी मैंने इसके साथ ज्वाइन कर लिया है, यूनाइट कर लिया है, यूनियन कर लिया है। तो अब ये इक्वल टू x हो गया। x इसके अंदर नहीं लाई करेगा, इसलिए कि ये सेट्स x से बाहर जा ही नहीं सकते। ग्राउंड साइड सेट से बाहर तो कोई सेट नहीं होगा ना। सो दिस इज इक्वल टू दिस। डियर स्टूडेंट्स, v अल्फा भी ओपन है x में, और y माइनस, डियर स्टूडेंट, इट इज x माइनस वाई। y जो है दैट इज बीइंग कवर्ड बाय v अल्फाज, और अगर इसके साथ हम यूनाइट कर लेते हैं इस x माइनस वाई को भी, तो दिस होल कलेक्शन विल बी कवरिंग x। ये x से बाहर नहीं जाएंगे, चूंकि बेसिकली ये x के सारे सबसेट्स हैं, लिहाजा इन सारों की यूनियन जो है वो x के बराबर होगी। रिकॉल एंड रिमेंबर, ये v अल्फाज ऑलरेडी x में ओपन है, x माइनस वाई भी x में ओपन है। ये सारी की सारी एक ओपन कवरिंग बाय सेट्स ओपन इन x आ चुकी है। नाउ इट इज गिवन दैट x इज कॉम्पैक्ट, इट इज गिवन। सो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि कॉम्पैक्ट है लिहाजा हर ओपन कवरिंग की फाइनाइट सब कवरिंग एग्जिस्ट करेगी, और ये हमारे पास एक ओपन कवरिंग है x की। सो डियर स्टूडेंट, इसको मैं इस तरह से राइट डाउन करता हूँ कि दिस इम्प्लाइज, डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं राइट डाउन करता हूं कि x माइनस वाई एंड यूनियन ऑफ एंड v अल्फा such that alpha belongs to I, they all together form covering of x by sets open इन x। ठीक है डियर स्टूडेंट, v अल्फा भी x में ओपन है और x माइनस वाई भी x में ओपन है। ओके, सिंस v अल्फा भी x में ओपन है और x भी ओपन है, सो दिस इंप्लाइज एक्चुअली दिस x इज इक्वल टू x माइनस वाई यूनियन ऑफ यूनियन अल्फा बिलोंगिंग I v अल्फा। Okay, or the same thing can also be written as union of alpha belongs to I v alpha union x
minus y. Okay, since x is compact, therefore there exists a finite subcollection से फर्ज कर लेते हैं कि वो कौन सी फाइनाइट सब कलेक्शन है, कंपैक्ट है, तो ये बात तो कंफर्म है कि हमारे पास फाइनाइट सब कलेक्शन एग्जिस्ट करेगी। उस फाइनाइट सब कलेक्शन को हम कह लेते हैं कि V1, V2, Vn and x minus y. Finite subcollections say this such that this x is equal to union of I is equal to 1 to n Vi union x minus y. Okay, because x is compact, लिहाजा जो भी ओपन कवरिंग होगी उसकी फाइनाइट सब कवरिंग आएगी, और फर्ज कर लिया है कि वो फाइनाइट सब कवरिंग जो है वो V1, V2 एंड Vn एंड x माइनस y है. सो दिस इज कवर्ड इन दिस. डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका y के साथ थ्रू आउट इंटरसेक्शन ले लेता हूँ तो y इंटरसेक्शन x इट विल बी इक्वल टू y इंटरसेक्शन this union of I is equal to 1 to n Vi, okay, and union of x minus y. So by De Morgan law ये यूनियन हमारे पास बाहर आएगा, I is equal to 1 to n, और इंटरसेक्शन इनसाइड में जाएगा, that is y intersection Vi, and ये यूनियन बाहर आएगा और इंटरसेक्शन इनसाइड में जाएगा y इंटरसेक्शन x माइनस y. ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू phi and we will be getting union of I is equal to 1 to n. Y intersection Vi is ui, okay, and union phi. So this implies, and y intersection x is equal to y, so this implies y is equal to union of I equal to 1 to n ui. okay, जहाँ पर आपको याद है कि ui टा y को बिलोंग कर रहे हैं. हमने इसमें ओपन कवरिंग ली थी और अल्टीमेटली हमने फाइनाइट सब कवरिंग ढूंढ ली है, एक फाइनाइट सब कलेक्शन ढूंढ ली है जिसकी यूनियन ने वापस इस y को कवर कर लिया है. तो डियर स्टूडेंट्स, बाय डेफिनेशन दिस y टुगेदर विद दिस सब स्पेस टोपोलॉजी, रिलेटिव टोपोलॉजी इज कॉम्पैक्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस थ्योरम में ये देखा है कि हमारे पास एवरी क्लोज सब स्पेस ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट. डियर स्टूडेंट, अगेन रिकॉल करें कि इस थ्योरम की स्टेटमेंट में हमें दो इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं. एक इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि जो ग्राउंड स्पेस है एक्स स्टार वो कॉम्पैक्ट है, और दूसरी इंफॉर्मेशन हमें ये दी हुई है कि जो वाई सब स्पेस है वो क्लोज्ड है. तो हमने प्रूव ये करना था कि y कॉम्पैक्ट है. अगर आप प्रूफ पे दोबारा नज़र दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों इंफॉर्मेशंस को हमने प्रूफ में यूज़ किया है. इनकी मदद के बगैर हम अपने रिज़ल्ट पर नहीं पहुंच सकते थे. हम y की सब स्पेस की कॉम्पैक्टनेस नहीं प्रूव कर सकते थे अगर हम x को कॉम्पैक्ट ना लेते या y को क्लोज ना लेते. डियर स्टूडेंट्स, y को क्लोज लिया तो पहली इंफॉर्मेशन यूज करते हुए x माइनस वाई को ओपन किया, और x माइनस वाई के ओपन होने से हमने वो जो कवरिंग ऑफ ओपन सेट्स ऑफ y थी बाय सेट्स ओपन इन x टुगेदर विद x माइनस वाई
एक्स की कवरिंग कंस्ट्रक्ट की। डियर स्टूडेंट, आप मेरे अल्फाज पे गौर करेंगे। हमें अगर y क्लोज ना दिया हुआ होता तो हम नहीं पहुंच सकते थे। y चूंकि क्लोज दिया हुआ था तो पहली इंफॉर्मेशन ये लगाई कि x माइनस वाई इज ओपन, और x माइनस वाई ओपन, और उधर से हमारे पास v अल्फाज ओपन। टुगेदर v अल्फा एंड x माइनस वाई हमारे पास x की कवरिंग बनी। और चूंकि फिर हमें x कॉम्पैक्ट दिया हुआ था तो इस इंफॉर्मेशन को हमने यूज़ किया और हमने फाइनाइट सब कलेक्शन फाइंड की i इक्वल टू 1 to n vi टुगेदर विद x माइनस वाई, जिसने x को कवर किया। और डियर स्टूडेंट, इसकी हेल्प से हमने अपने टारगेट को अचीव किया। और जिस वक्त हमने y का दोनों साइड से इंटरसेक्शन लिया तो हमने देखा कि y इज़ अगेन कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ i इक्वल टू 1 to n ui, और ui ओरिजिनली हमने y में ओपन सबसेट्स लिए थे। और हमने डियर स्टूडेंट्स ये प्रूव किया कि दिस सब स्पेस इज़ ए कॉम्पैक्ट subspace. So dear students, you have to remember that every closed subspace of a compact space is compact. I think you will understand और आप इस concept को conceive कर सकेंगे। Thank you very much dear students.